Good morning, class. Welcome back. Welcome back to your computer class. So, kids, yesterday we have seen how we can check our grammar and spelling mistake in MS Word. Okay. Now, next option that we have to do here is the next thing that we have to do here is we have used the thesaurus also. Now we have to see the find and replace option. Now what we have to do? We have to see the find and replace option. Now find and replace means see what does the find and replace mean? Find and replace means that आप क्या कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट में आप कोई वर्ड फाइंड करके उसको किसी और वर्ड के साथ रिप्लेस कर सकते हो। मतलब क्या कि आपने क्या किया आपने एक डॉक्यूमेंट बनाया जिसमें आपको सपोज मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया और वो डॉक्यूमेंट था क्लास 4th के लिए, लेकिन मैंने वहां पे जगह जगह क्लास 3 लिख दिया। तो मैं क्या कर सकती हूँ, क्लास 3 को रिप्लेस करके क्लास 4 कर दूंगी। तो वहां पे मुझे यूज आएगा फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन। फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन का यूज वहां पे आता है हमें। ओके now see the next option we are having here. Let us read this. In your document, sometime you need to change the word or text with some other word or text wherever it is used in it. ठीक है, so in your document what happens, sometime you need to change the word or text with some other word or text. ठीक है, this is useful if you have frequently misspelled a name. अब जैसे सपोज मैंने कोई वर्ड क्या किया, मिस स्पेल्ड कर दिया। मिस स्पेल्ड मीन्स मैंने उसकी स्पेलिंग गलत लिख दी। मैंने किसी वर्ड की स्पेलिंग क्या कर दी, हर जगह जैसे राम की स्पेलिंग या सीता की स्पेलिंग मैंने कई जगह यूज किया और मैंने उसको क्या कर दिया, मैंने उसको गलत गलत मिस स्पेल्ड स्पेलिंग कर दी, गलत स्पेलिंग मैंने वहां पे लिख दी। Now, so what can be done in that case? In that case, the find command is used to search. Find command is used to search for a particular word or text, and replace command replaces the text or word with a new text. Find and replace option. ठीक है? What happened? Find command is used to search for a particular word or text, and replace command is used to what it does, replace command replace the selected text or word with a new text. ठीक है, तो this is the function of find and replace. Okay, now see, click at the what are the steps? Click at the beginning of your document. Click on the home tab. On the ribbon, click on the replace button. ठीक है, सबसे पहले we will click on home tab. Now after clicking on the home tab, what you should do, click on the replace button. Home tab ribbon में what you will get, a replace button. Then the find and replace dialog box appear. What happened? Let us see whether we are having replace here or not. Yes, I am having here replace. So if I'll click here, yes, चलो मैं समझाती हूँ. I got it. The find and replace dialog box appear. The type the text you want to find. देखो ऐसा dialog box will appear. This is find. The upper first line is what? First line is find. The next line is replace. So find and replace. These two things are there. तो अब क्या करोगे, पहले आपने find कर लिया, जैसे किस word को हमें replace करना है।
ठीक है, फाइंड, और उसके बाद आपने रिप्लेस विथ में आपने क्या कर दिया, उसे रिप्लेस कर दिया, और फिर आप क्या करोगे, क्लिक कर दोगे रिप्लेस ऑल में, तो वो सारे वर्ड्स क्या हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे। Fine. Now click one of the following option. Replace the word. Replace the word and all other matching word in the document. तो क्या होगा, replace करेंगे तो खाली that particular word will get replaced. बट अगर हम replace all करेंगे तो वो word उस document में जहाँ जहाँ होगा वो सारे word क्या हो जाएंगे, वहां से replace हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट, इग्नोर द वर्ड। ठीक है, चलो लेट अस ट्राई टू डू दिस एंड देन अगेन वी विल रीड दिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड सम टेक्स्ट ना, तो लेट अस कॉपी समथिंग फ्रॉम से गूगल। ओके, तो यहाँ पे मैंने इंडिया सर्च किया, and here I have got lots of options. ओके, लेट अस कॉपी इट फ्रॉम हियर। मैंने क्या किया, इसको यहाँ से क्या किया, कॉपी कर लिया। ओके वेट, मैंने कॉपी किया और इसको मैंने फिर अपने टेक्स्ट में क्या किया, इसे यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो मेरा वर्ड क्या हो गया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने इसको। ठीक है, ओके, नाउ नाउ अब मुझे क्या करना है, नाउ आई वांट टू कि भाई इसको फाइंड एंड रिप्लेस हम करें। ठीक है, तो लेट अस इंक्रीज द फॉन्ट साइज सो उसकी जो भी चेंजेस हो वो आपको प्रॉपरली विजिबल हो। ओके, नाउ सी, सपोज नाउ देखो, अब यहाँ पे इंडिया इंडिया कई जगह आया है ना, देखो इंडिया इंडिया इंडिया। ना इफ आई वांट कि भाई इंडिया ना हो, यहाँ पे आ जाए गोवा, तो सपोज, जस्ट सपोज, तो व्हाट आई विल डू, देखो होम टैब में व्हाट हैपन, क्लिकिंग ऑन द होम टैब, व्हेन यू विल क्लिक ऑन द होम टैब में देखो हियर यू विल गेट द रिप्लेस ऑप्शन, यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस दोनों, यू विल क्लिक ऑन द रिप्लेस ऑप्शन। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, what happen here, here you have get the two option, first is search for, that means कौन किस word के लिए आप search कर रहे हो। now next is you want to replace that word with the other word, उस word को आप किस word से replace करना चाहोगे। ओके, उस word को आप किस word से replace करना चाहोगे। ठीक है, these two options are available here। now say if I want to, yes, if I want to replace it, ठीक है, चलो करके देखते हैं। अब नाउ मैंने बोला कि मुझे इंडिया वर्ड को रिप्लेस करना था। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने इंडिया टाइप किया। ठीक है, अब मुझे मेरे डॉक्यूमेंट में इन्होंने शो कर दिया कि आपके डॉक्यूमेंट में 3 प्लेसेस पे इंडिया 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 आया है। तो अब आई हैव हैविंग ऑप्शन, रिप्लेस करना है या रिप्लेस ऑल करना है। तो लेट अस सी, अगर मैं यहाँ पे गोवा टाइप कर देती हूँ, इंस्टीड ऑफ इंडिया मैंने गोवा किया, और मैंने जब अभी रिप्लेस ऑल पे नहीं, आई हैव क्लिक्ड ऑन रिप्लेस ओनली, तो सी व्हाट हैपेंड, फर्स्ट वाला जो इंडिया था वो क्या हो गया, वो गोवा बन गया। देन अगेन इफ आई विल प्रेस ऑन रिप्लेस, नेक्स्ट वर्ड भी चेंज हो जाएगा, देन अगेन थर्ड वर्ड भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, ओके नाउ अभी वापस से मैंने इसे इंडिया कर दिया, सो दैट टू एक्सप्लेन यू वन मोर टाइम।
Okay, so we have just seen the find and replace option. Now let us do it one more time. चलो एक बार और मैम आपको समझाएं find and replace option. मैम आपको एक बार फिर से समझाएं how to find and replace the word. Okay, now see. So the thing is here. चलो अभी what we are going to do, हमने फिर से replace पे क्लिक किया, ठीक है. अब देखो here I am having find, heading, find, replace, follow up. So I will click on the search first. अब अगर सर्च के पास क्या है, फाइंड होल वर्ड होगी. ओके, सो नाउ मैंने क्या किया, सर्च पे प्रेस किया और यहाँ पे मैंने टाइप किया इंडिया. तो देखो जैसे ही मैंने इंडिया टाइप किया, व्हाट हैपेंड हियर, यहाँ पे 3 प्लेसेस पे इंडिया आ गया. क्योंकि मेरे पूरी इस डॉक्यूमेंट में इंडिया कितनी प्लेस पे था, इंडिया 3 टाइम्स था. तो उसने क्या हुआ, 3 प्लेसेस पे मेरे स्क्रीन पे क्या हो गया, इंडिया आ गया. नाउ अब इंडिया वर्ड को मैंने रिप्लेस किया. यहाँ पे इंडिया वर्ड को मैंने क्या किया, रिप्लेस किया से एशिया से. मैंने क्या किया, इंडिया वर्ड की जगह एशिया कर दिया, ठीक है. अब आई एम हैविंग 2 ऑप्शन, रिप्लेस एंड रिप्लेस ऑल. सो इफ आई क्लिक ऑन रिप्लेस, अगर मैं रिप्लेस पे क्लिक करती हूँ तो क्या होगा, ये एक एक वर्ड को रिप्लेस करेगा. बट इफ आई क्लिक ऑन रिप्लेस ऑल, तो ये सारे इंडिया 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 3 प्लेसेस के इंडिया को क्या कर देगा, ये एशिया बना देगा, ठीक है. लेटेस्ट टू, तो आई हैव क्लिक ऑन रिप्लेस ऑल. तो सी व्हाट हैपेंड, 1 2 3. 1 2 and 3. इन 3 प्लेसेस पे व्हाट वी आर हैविंग, हमें क्या मिल गया, फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन हमें इन 3 प्लेसेस पे मिल गया, ठीक है. गॉट इट. देखो 3 प्लेसेस पे फाइंड एंड रिप्लेस की हेल्प से हमने क्या किया, इंडिया को हमने क्या किस में कन्वर्ट कर दिया, एशिया में कन्वर्ट कर दिया. एशिया में हमने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया. ओके ओके, नाउ चलो अपने डॉक्यूमेंट को करेक्ट कर लें पहले. कंट्रोल जेड या ओके. नाउ चलो, तो ये तो हुआ फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन. अच्छा इधर देखो, फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन के ऊपर आपको, स्क्रीन के ऊपर आपको फाइंड ऑप्शन भी दिख रहा होगा. हियर यू कैन सी द फाइंड ऑप्शन. सो इफ यू विल क्लिक ऑन द फाइंड ऑप्शन, आपको क्या दिखेगा, इफ यू विल क्लिक ऑन द फाइंड ऑप्शन अपने स्क्रीन के ऊपर, इफ यू विल सी ऑन द फाइंड ऑप्शन, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे मैं कोई भी वर्ड क्या कर सकती हूँ, सर्च कर सकती हूँ. सपोज इफ आई वांट टू सर्च पॉपुलेशन, अब मेरे स्टेटमेंट में, मेरे इस डॉक्यूमेंट में जितनी जगह पॉपुलेशन आया है, वो देखो किससे हो गया, वो डार्क हो गया है, वो येलो येलो कलर से क्या हो गया है, डार्क हो गया है. ओके ठीक है, गॉट इट. तो देखो ये हो गया फाइंड. एंड सेम गोज फॉर, अगर हमने क्या किया, फाइंड एंड रिप्लेस पे क्लिक किया, सो व्हाट हैपेंड हियर, हम क्या कर सकते हैं, हम वर्ड को क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं. हियर वी कैन रिप्लेस द वर्ड. गॉट इट. so this is the use of find and replace option. यही क्या होता है, this is the use of find and replace option. Now चलो लेट अस मूव बैक टू अवर पीडीएफ एंड विल सी द न्यू थिंग. अच्छा अब इधर देखो, वन थिंग मोर यू कैन सी. देखो यहाँ पे क्या हुआ,
ये लैंग्वेज और विथ के नीचे क्या हो गया है, red wavy line. So if I'll click on it, I will get it corrected. तो ये this is the use of red wavy line or thesaurus, या हम जिसको बोलते हैं that we can check the grammar. तो see, this is the way how we can find and we can replace the text. Okay. Now next thing is changing the text. चेंजिंग टेक्स्ट केस. अभी तक देखो हमें आ गया हाउ टू चेंज द फॉन्ट साइज, हाउ टू चेंज द फॉन्ट कलर, हाउ टू चेंज फॉन्ट स्टाइल, बट नेक्स्ट ऑप्शन इज हाउ यू कैन चेंज द फॉन्ट टेक्स्ट या हाउ यू कैन चेंज द टेक्स्ट केस. कैसे आप टेक्स्ट केस को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो. So sometime in a document you may need to change the case of the text. So what happens, sometime in a document you may need to change the case of the text. That is the text you have written in a small letter should have been written in the capital letter. ठीक है. सपोज किसी का नाम है जो कि मैंने क्या किया, स्मॉल लेटर से लिख दिया, बट नेम तो हमेशा कैपिटल लेटर से होते हैं ना. तो दैट्स वाई अपर केस में मुझे लिखना है. तो इन दैट केस आई कैन यूज द चेंजिंग द टेक्स्ट केस. सो इन दैट केस मैं क्या यूज कर सकती हूँ, चेंजिंग द टेक्स्ट केस. देयर आई कैन यूज. Okay, now let us see. You can do this without retyping the text. So you can do this without what? Without retyping the text by using the change case option. So you can do this by clicking on the change case option. Change case option पे click करके you can do this. There are 5 case option offered by MS Word. So in MS Word you are offered 5 text case option. First one is sentence case. Now the first character in the sentence will be uppercase and the rest will be in lowercase. So what happened here? The first character in the sentence will be in the uppercase and the rest will be in the lowercase. All characters will be in lowercase और द स्मॉल लेटर्स. ठीक है. अब देखो लोअर केस में क्या होगा, ऑल करेक्टर्स विल बी इन लोअर केस. सारे करेक्टर्स किस में होंगे, लोअर केस में होंगे. अपर केस में ऑल करेक्टर विल बी इन द अपर केस. अपर केस में व्हाट विल हैपन, ऑल करेक्टर विल बी इन अपर केस. नेक्स्ट, कैपिटलाइज ईच वर्ड. Capitalized each word means what? Capitalized each word means first character of each word is capital and the rest are small. First word is capital and rest is small. Okay, now. Toggle case. It is the reverse of the capitalized each word. The first character of the word will be small. What happen here? First character will be in small letter. First character हमेशा क्या हो जाएगा? Small letter हो जाएगा. अच्छा ठीक है. लेटेस्ट चलो इसको प्रैक्टिस करते हैं हम. So let us open MS Word to practice it. Okay.
ओके, सो हियर वी हैव स्टार्टेड दिस। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, अब चलो इसको हमें क्या करना है, इसका केस चेंज करना है। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेस कि भाई ये केस चेंज करना, ये ऑप्शन हमारी स्क्रीन पे अवेलेबल किधर है, ये जो हमें केस चेंज करना है इसका ऑप्शन इधर अवेलेबल है। देखो दिस इज व्हाट, दिस इज चेंज केस ऑप्शन। और अभी मैं इसको अंडरलाइन, अभी मैं इस पे क्लिक करूंगी ना तो यू कैन सी द ऑल दो 5 ऑप्शंस। चलो मैं दिखाऊं तुम्हें। सी, जो ऑप्शन अभी हमने बुक में पढ़ा वो सेम ऑप्शन देखो, यू कैन गेट हियर ऑल्सो। जो ऑप्शन अभी हमने बुक में पढ़ा, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड एंड टॉगल केस। अब देखो टॉगल केस में क्या हो रहा है, what is happening here in toggle case? In toggle case you can see that देखो toggle किस तरह से लिखा है, first letter, that means first letter is small, first letter क्या है, small है, correct? and the next letter is what, capital, next letter क्या है, capital है। then फिर first second word का next letter is what, small, and the other letter is what, capital. okay now so let us try to do this here also। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब मैं केस पे गई और देखो जब मैंने सेंटेंस केस पे प्रेस किया तो क्या हुआ, सेंटेंस केस पे प्रेस करते ही अगर आप ध्यान से देखोगे तो हर सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल हो गया। अच्छा रुको, इसमें आपको ज्यादा डिफरेंस नहीं शो होगा, वेट, क्योंकि हमारा पहले से ही हमारा सेंटेंस उसी तरह था। नाउ अभी मैंने फिर से प्रेस किया, नाउ आई विल प्रेस ऑन टॉगल केस। अच्छा नाउ सी, मैम ने क्या किया है, मैम ने कौन सा केस चूज किया है, मैम ने चूज किया है कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड, सारे वर्ड्स को क्या कर दो, कैपिटलाइज कर दो। सो सी, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, द ग्रेट पार्ट, मोस्ट ऑफ हियर दीज वर्ड्स आर व्हाट, कैपिटलाइज्ड। वेट अ मिनट, ओके नाउ देखो मैंने पहले क्या किया, वर्ड को सेलेक्ट किया और फिर मैंने क्या किया, अपने सेंटेंस को सेलेक्ट किया जिस सेंटेंस की एडिटिंग मुझे करनी थी, और उसके बाद मैंने क्या किया उस सेंटेंस को, उसके बाद मैंने उस सेंटेंस को क्या किया, लोअर केस में कर दिया। मैंने उस सेंटेंस को लोअर केस में कर दिया। ठीक है नाउ, तो इस चलो एक बार फिर से देखते हैं। मैंने अपने पूरे फर्स्ट पैराग्राफ को सेलेक्ट किया एंड इसके बाद मैं फॉन्ट स्टाइल पे गई और यहाँ पे जाके अगर मैं टॉगल पे कर दूं तो आई एम वरी, टॉगल पे करने से आई एम नॉट सीइंग एनी डिफरेंस। और अगर मैं अपर केस कर दूं, सो सी, जब मैंने अपर केस किया तो क्या हुआ, सारे लेटर्स क्या हो गए, सी कैपिटल हो गए, सारे लेटर्स क्या हो गए, हमारे स्क्रीन पे जितने भी लेटर्स है वो किस फॉर्म में आ गए, वो कैपिटल फॉर्म में आ गए। वो सारे लेटर किस फॉर्म में आ गए, कैपिटल फॉर्म में वो सारे लेटर्स आ गए, है ना। ओके नाउ मूविंग अहेड, ओके लेट अस मूव बैक टू आवर पीडीएफ एंड सी व्हिच इज द नेक्स्ट थिंग। तो हाँ ठीक है, हमने इन सारे केसेस के बारे में देख लिया। नाउ सी, select the text that you want to change. What you have to do, first you have to select the text that you want to change to a new case। ठीक है, क्लिक ऑन होम टैब ऑन द रिबन, आपने क्या करना है, होम टैब ऑन द रिबन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक ऑन द चेंज केस बटन, नेक्स्ट इज व्हाट, you have to click on the change case button।
Then after clicking on the change case button, the change case menu will appear. Change case menu will appear. ठीक है. Click on the case style you want to use. So next point is what? You can click on the style you want to use. Whatever the style you want to use, click on that style. Now to deselect the text, click outside the text here. अगर आपको text को नहीं select करना तो किसी text में outside select करिए. मतलब कहीं भी आप plain blank space पे आप क्या कर सकते हो, अपना कर्सर पॉइंट कर सकते हो. Okay, now next point is bullet and numbering. Okay, so our next point is what? Bullets and numbering. So we will start this now, bullets and numbering. Okay, so kids, next topic that we have to do after the changing the case, the next topic that we have to do is bullets and numbering. So I have already explained you bullets and numbering. Bullets and numbering मैंने आपको already पहले भी explain किया हुआ है. ठीक है. तो देखो bullets and numbering में what happen? In bullets and numbering what you can do in this, in bullets and numbering आप क्या कर सकते हो, आपकी जो राइटिंग है उसको आप बुलेट फॉर्म या नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, है ना. सी, a bullet is a dot or a symbol. Bullet is what? Is a dot or a symbol that is marked. Bullet is what? Bullet is a dot or symbol that is marked wherever you want to display the text. Wherever you want to display the text. So bullet is what? Bullet is marked there. Okay, now next is, so marked where you want to display the text in the form of different point. A bullet can be given when the order of the position doesn't matter, that is unordered. Unordered means क्या, जैसे कोई order नहीं है, सिर्फ हमें bullets चाहिए, तो there we can use the bullet option. वहां पे हम क्या कर सकते हैं, there we can use the bullet option. There we can use the bullet option. Okay. In MS Word, the bullet is marked in the form of black dot. So in MS Word, what happened? Bullet is marked in the form of black dot by default. By default एक black dot, इस तरह के black dot से क्या होता है, वहां पे आप मार्क कर सकते हो. ओके, नाउ नेक्स्ट इज, चलो करके देखते हैं, जब तक करेंगे देन ओनली वी नो हाउ टू डू इट. फाइन. नाउ सपोज आई वॉन्ट टू पुट अ डॉट हियर. ठीक है, मान लो मुझे बुलेट्स लगाने हैं, तो हियर आई हैव गॉन ऑन बुलेट साइड और मैंने बुलेट्स को ऑन कर दिया. नाउ देखो जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस करते ही क्या हुआ, देखो यहाँ पे क्या हो गया, डॉट्स आने शुरू हो गए, बुलेट्स आने शुरू हो गए. है ना. देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरे मार्क करते ही क्या हो रहा है, बुलेट्स आना शुरू हो गया है ना. सी, तो बुलेट्स क्या है, बुलेट्स आर द ब्लैक डॉट्स. अब देखो इनका कोई, इन स्टेट्स को मैंने लिखा, इनका कोई ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है, तो जब इनका कोई ऑर्डर नहीं है तो हमने क्या किया, बुलेट्स का यूज किया. वहीं अगर इनका ऑर्डर होता, इनका कोई ऑर्डर होता तो हम क्या करते, हम नंबरिंग का यूज करते. Now select the text that you want to format. First option is what? Select the text that you want to format. Okay, next option is what? After this, next option that we are having here is, after this next is click on the home tab on the ribbon. Click on the home. पहले select कर लिया text को, फिर आपने उसको ribbon में डाला.
रिबन में आप लिस्ट पे जाओगे एंड यू कैन क्लिक ऑन द बुलेट बटन। वहां पे जाके आप क्या कर सकते हो, देयर यू कैन क्लिक ऑन द बुलेट बटन। Okay, now you can click on the numbering button to create a numbered list. So one more thing that you can do here is you can click on the numbering button पे आप click कर सकते हो to create on the numbered list. To create the numbered list, you can click on the numbering list. Now you can click on the multi-level button to create a multi-level list. Or you can also click on the multi-level button to create the multi-level list. Okay. So kids, today we have done up to here. In next class, we will apply this. We will apply this bullets in our document. Okay. Till then, take care.